Hello friends and welcome to this program. नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, इस कार्यक्रम में स्वागत है। Thank you for joining us this day. आज के दिन हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। And I believe that you are being blessed by the contents of this program. आशा करता हूँ कि इस संदेश से आप आशीषित होते हैं। God has been so good to us. प्रभु हमारे ऊपर बहुत कृपावान है। And I know He is good to you as well. मैं जानता हूँ आपके लिए भी वे भले परमेश्वर हैं। He has blessed our lives beyond measure. उन्होंने हमारे जीवन को बड़ा आशीष दिया है। The world is going through tough times. संसार बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। All the things that people have thought about have gone topsy-turvy. लोगों को जिस चीज के ऊपर भरोसा था यह ऊपर नीचे हो रहा है। The Bible says, बाइबल बताता है the floods may come, बाढ़ आ सकता है, the waves may rise, तरंग ऊपर उठ सकती है, but he who trusts in the Lord मगर जो प्रभु पर भरोसा रखता है will always find a shelter. उन्हें कहीं न कहीं शरण जरूर मिलेगी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, even when we are going through these difficult circumstances, इस कठिन परिस्थिति के बीच से गुजरते हुए भी God cares for those who call upon His name. परमेश्वर उनकी देखभाल करते हैं जो उनके नामों को पुकारता है। Our God is a promise-keeping God. हमारा परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला प्रभु है। He never fails and forsakes His children. वो न कभी असफल होते हैं, न ही अपने बच्चों से विमुख हो जाते हैं। He has always been good to you and me. वे हर समय हमारे लिए भले परमेश्वर है। Many times we may not understand how this goodness looks like, कई बार हमें पता नहीं होता है कि उनकी भलाई कैसे दिखाई देता है, but God had it all planned out. पर परमेश्वर इसकी योजना बनाए हुए हैं। To those who work and walk in His perfect will, उन्हें जो उनकी सिद्ध इच्छा पर चलते हैं, everything will come to a flourishing finish. हर बात खुशहाली में समापन में आ जाएगा। In the last episode, we were talking about the 3 levels of sonship. पिछले सप्ताह हम पुत्रत्व के 3 स्तर या श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। And we were comparing it with the 3 divisions of the tabernacle. और हम इसे पवित्र निवास स्थान के 3 भाग से तुलना कर रहे थे। Just like the tabernacle had 3 levels of holiness. जैसा कि पवित्र निवास स्थान 3 भागों में बांटा गया था। 3 levels of presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का 3 स्तर। Just like Jesus had 3 levels of disciples. जैसे यीशु मसीह के 3 स्तर के चेले थे। The 120, 120, the 12, 12 and the 3. और 3। And just like the parable Jesus talked about the harvest. जैसे यीशु मसीह ने फसल कटाई के दृष्टांत को कहे 30, 30, 60, 60 and 100. सैकड़ा। In the same way, उसी प्रकार the tabernacle also had 3 different levels. पवित्र निवास स्थान के 3 स्तर या भाग थे। The outer court, बाहरी आंगन, the holy place, पवित्र स्थान, and the most holy place. महापवित्र स्थान। In the same way, उसी प्रकार we also have the 3 levels of sonship. हमारे पुत्र तो भी 3 प्रकार के हैं। I already told you about the first level of sonship. मैंने पहले स्तर के पुत्रत्व के बारे में आपको बताया है। It is called the nepios or the infant level. इसे नेपियोस अथवा शिशु स्तर कहा जाता है। And I have talked to you about the infant level of sonship. मैंने पुत्रत्व के शिशुपन के व्यवहार के बारे में आपसे बात करी थी। And how does this relationship relate to the kingdom of God? और कैसे इस संबंध प्रभु के राज के साथ संबंधित है सो बताया था। This relationship is totally dependent on God, यह संबंध पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहता है, but not in a positive way. पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं। God is their refrigerator. परमेश्वर उनके लिए एक रेफ्रिजरेटर के समान है। When they are hungry, जब उन्हें भूख लगता है, they look for the word, वे वचन में ढूंढने लगते हैं, they become blessed, आशीष को पाते हैं, and then they leave after that. फिर उसे छोड़ देते हैं। God becomes like a first aid box. परमेश्वर एक फर्स्ट एड बॉक्स के समान है उनके लिए। When they are hurt, जब उन्हें चोट लगता है, they quickly look for a verse वे जल्दी जल्दी वचन को ढूंढते हैं to heal themselves. अपने आप को चंगा करने के लिए। But after that, उसके बाद they are not bothered with what God wants to do with their lives. उन्हें कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या करना चाहते हैं।
This level of maturity is not a spiritual mature level. इस प्रकार की परिपक्वता एक आत्मिक मनुष्य की परिपक्वता नहीं है। That is called the Nepios level of sonship. इसे नेपियुस स्तर की पुत्रत्व कहा जाता है। Now today we are going to talk about the second level of sonship. आज हम दूसरे स्तर के पुत्रत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। We can call it the teknon or the teenager level. हम इसे टेक्नॉन अथवा किशोर अवस्था का स्तर कह सकते हैं। This is the second stage of sonship. यह पुत्रत्व का दूसरा स्तर या दर्जा है। We can also call them as the holy place Christian. हम उन्हें पवित्र स्थान के मसीही भी कह सकते हैं। We find about this teknon level of sonship in the following verses. हम इस टेक्नॉन पुत्रत्व के बारे में इन वचनों में पढ़ सकते हैं। Matthew 15:26, मत्ती 15 अध्याय का 26वां वचन, 18:25, 18 का 25वां वचन, Mark 7:27, मरकुस 7 अध्याय का 27वां आयत, 10:24, 10 अध्याय का 24वां वचन, Luke 11:13, लूका 11वां अध्याय का 13वां वचन, 1 Corinthians 4:14 and 17. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 14 और 17वां वचन। If you look at all these verses, अगर आप इन सभी आयतों को देखते हैं, this verses talks about the teknon level of sonship. यह आयत टेक्नॉन पुत्रत्व के स्तर के बारे में बताता है। Now what happens in a teenage level of sonship? एक किशोर अवस्था के पुत्रत्व के स्तर में क्या होता है? Christians walking in this level are more mature. इस स्तर पर चलने वाले या जीने वाले मसीह अधिक परिपक्व होते हैं। They are more intimate. वे और भी घनिष्ठ होते हैं। They respond to what their parents want them to do. वे अपने माता पिता की बातों को मानते हैं। They understand certain things about the world around them. वे अपने आसपास में हो रही घटनाओं को समझते हैं। They know what suits them. उन्हें पता है कि क्या चीज उसे जंचता है। They no longer wear the clothes that their daddy or their mother wants them to. वे उन वस्त्र को नहीं पहनते हैं जो उनके अभिभावक उनसे पहनने को कहते हैं। When they go to market, जब वे दुकान जाते हैं, they usually choose their own clothes. वे अपने कपड़े अपने आप ही पसंद करते हैं। They usually like their own food. अपने तरीके का खाना खाना उन्हें पसंद है। They usually buy the shoes they prefer. जो जूते उन्हें पसंद हो वही वे खरीदते हैं। They make the hairstyle they want. अपने हिसाब से बालों को वे कंघी करके संवारते हैं। They have a friend circle whom they listen to more than their parents. उनके दोस्तों की झुंड की बातें वे ज्यादा सुनते हैं, अभिभावक से भी ज्यादा, Because they want to impress the world around them. क्योंकि वे आसपास के संसार में अपना प्रभाव को डालना चाहते हैं। They carry a feeling of competitiveness. वे तुलना की भावना को लिए हुए चलते हैं। They want to do what others are doing. दूसरे लोग जो करते हैं उसे देखकर वे भी वैसा ही करना चाहते हैं। Their mindset is fluctuating during this time. इस समय उनके मन और विचार स्थिर नहीं होता है। They are not very decisive. वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। That is what happens in the teknon level of a Christian relationship. ऐसा ही होता है मसीहत के टेक्नॉन स्तर में। Now these people are led by the Holy Spirit. अब ये लोग पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। And they listen to God's word. वे प्रभु के वचन को सुनते हैं। They understand what is right and what is wrong. समझ पाते हैं कि सही और गलत क्या है। They don't always do the wrong things. वे हर समय गलत कार्य नहीं करते हैं, But even to do the right things, पर सही कार्य करने के लिए भी they only do what they are told to do. वे सिर्फ वही कार्य करते हैं जो उन्हें कहा गया है करने के लिए। They typically tend to follow what is written or instructed to them. वे सिर्फ उतना ही करते हैं जो उन्हें बताया गया या निर्देश दिया गया हो। And they do not do what is not told to them. वे उस कार्य को नहीं करते हैं जो उन्हें बताया नहीं गया है। We can see these traits in many teenagers. कई सारे किशोर जीवन में हम इस तरह की आदतों को देखते हैं। I have a teenage son. मेरा बेटा किशोर अवस्था में है। So when we come home after some visit some days, कहीं बाहर जाकर वापस जब हम घर लौट जाते हैं, we find that the home is not in order. हम पाते हैं कि घर बहुत अव्यवस्थित है। And whatever obvious problems that we see in the house has not been addressed to. जो भी गंदगी वहाँ पहले थी वह यथावत ही हम देखते हैं। Sometimes the door is left open. कभी दरवाजा खुला ही छोड़ दिया जाता है। And we find that mosquitoes have invaded our room. और हम पाते हैं कि ढेर सारे मच्छर घर के अंदर घुसे हुए हैं। Because it was evening time. क्योंकि यह शाम का समय था। And then when we tell our son, जब हम अपने बेटे से कहते हैं,
Why didn't you close the door? क्यों दरवाजा तुमने बंद नहीं किया? He tells us, वो कहता है, you didn't tell me to close the door. आपने कहा नहीं इसे बंद करने के लिए। That is what happens in the technon level of sonship. इस टेक्नोन स्तर की पुत्रत्व में ऐसा ही होता है। We have to tell them again and again. हमें उनसे बारंबार कहना होता है। We have to remind them again and again. हमें उन्हें बार बार याद दिलाना होता है। Even then they forget so many things. फिर भी वे कई सारी बातों को भूल जाते हैं। That's what happens in the technon level of sonship. टेक्नोन स्तर की पुत्रत्व में यही सब होता है। And many times they think that they know everything. कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। Many teenagers think that way. कई किशोर ऐसा ही सोचते हैं। Many teenagers think that their parents are dumb. कई किशोर ऐसा सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो कुछ नहीं जानते, They are uncivilized. वे असभ्य हैं, They have outdated knowledge. उनका ज्ञान तो पुराना हो चुका है। They are not always willing to listen to their parents वे अपने अभिभावक से सुनना पसंद नहीं करते हैं, because they have acquired knowledge from the outside world. क्योंकि उन्होंने बाहरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त किया है। They have acquired knowledge from the books they read, उन्होंने पढ़ी हुई किताबों से ज्ञान हासिल की है, from the conversation of their friends. अपने दोस्तों से बात करने के दौरान। This is the level where people tend to get confused. यही वो स्तर है जहाँ लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। They are drawn away by the crowds they follow. वे अपना पीछा करने वाले भीड़ के द्वारा प्रेरित हो जाते हैं। That is when a Christian ministry looks very dangerous. ऐसी स्थिति में एक मसीह सेवकाई बड़ा ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच जाता है। You have become a teenager आप किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं। in your ministry. अपने सेवकाई में You have heard God talking to you. आपने प्रभु आपसे बातें करते हुए सुना है। Once upon a time, the Holy Spirit moved in your life. एक समय ऐसा था जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे थे। He brought growth in you. उन्होंने आपके जीवन में वृद्धि को लाए। You began to grow in the Spirit. आप आत्मा में बढ़ना शुरू किया। And then you start doing some small ministries. फिर आपने छोटी मोटी सेवकाई करना आरंभ करी। You get some invitations from people or churches or organizations. आपको कुछ कलीसिया, कुछ लोग आदि से न्योता मिलने लगा। Maybe to sing a song. शायद गाना गाने के लिए हो सकता हो, Or maybe to give a small message. या संदेश प्रचार करने के लिए, Or maybe for a prayer meeting. नहीं तो प्रार्थना सभा करने के लिए। And when all these opportunities or invitations come, जब ऐसा मौका या न्योता मिलता है, people begin to believe that they already know so many things. लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। The people who have walked that journey before them are outdated. उनसे आगे जाने वाले लोगों को वे पुराना समझने लगते हैं। That is the danger of walking in this relationship. इस संबंध में चलने वालों के लिए यही खतरनाक है। A technon son always thinks he's more smarter. एक टेक्नोन पुत्र हमेशा यही सोचता है कि वो दूसरों से ज्यादा बुद्धिशाली है। In a technon level of ministry, टेक्नोन स्तर की सेवकाई में, or in a technon level of maturity, अथवा टेक्नोन स्तर की परिपक्वता में, we often use our brains, हम ज्यादातर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। our ideas, हमारे उपाय, our philosophies, हमारा दर्शन, our education and academics that we have cultivated. हमारे शिक्षा और उपलब्धियां जो हमने हासिल करी है। And we suddenly think that we know everything. अचानक हमें ऐसा लगने लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। That's what happened to Moses. भविष्यवक्ता मूसा के साथ ऐसा ही हुआ। God told Moses, यहोवा ने मूसा नबी से कहा, I will use you to deliver these Israelites. मैं इन इजरायलियों को छुड़ाने में तुम्हारा उपयोग करूंगा। And God used his mother to train Moses. मूसा नबी को तालीम देने के लिए उनकी माँ को परमेश्वर ने उपयोग किया। And his mother used to talk to him daily about the destiny of Israel. उनकी माँ उनसे हर दिन इजराइल के नियति के बारे में बात किया करती थी। She used to tell him, वो उनसे कहते थे, God has promised our father Abraham यहोवा ने हमारे पूर्वज अब्राहम से वादा किया है that this Egypt is not a permanent place for us, ये मिस्र हमारे स्थायी घर नहीं है, but God will be giving us a permanent place, पर परमेश्वर हमें एक स्थायी स्थान देने जा रहे हैं। a land flowing with milk and honey. दूध और मधु बहने वाली भूमि।
So we need to go back to that land. हमें उस भूमि में वापस जाना है। But how can we go? पर हम कैसे जा सकते हैं? We are under slavery. हम तो दासत्व में हैं। Pharaoh is watching over us. फरौन हमें देख रहा है And he is very strongly against us. और वो हमारे विरोध में है। So we need a deliverer. इसीलिए हमें एक छुड़ाने वाले की आवश्यकता है। And Moses begins to think, मूसा नबी सोचने लगे, since Israel needs a deliverer, क्योंकि इज़राइल को एक छुड़ाने वाले की जरूरत है, why not I try to become the deliverer? क्यों न मैं उस छुड़ाने वाले बन जाऊं? Because I have been raised in a king's palace. क्योंकि मैं तो एक राजसी घराने पर पला बड़ा हूँ। I know how to fight. मैं जानता हूँ कि युद्ध कैसे किया जाता है। I am educated. मैं पढ़ा लिखा हूँ, I am qualified. मैं शिक्षित हूँ, योग्य हूँ। I know how to ride horses and chariot. मैं जानता हूँ कि घोड़ा और रथ को कैसे चलाना होता है। So among all the Israelites that I see around me, मेरे आसपास के सभी इज़राइलियों में no one is as qualified as me, Moses. मेरे समान और कोई भी योग्य नहीं है। So I can do it. मैं यह कर पाऊंगा। He goes out in his own strength. वो अपने बल पर ही चला गया। Then you know what happens? फिर क्या हुआ आप जानते हैं? He is made to flee from that land. उन्हें उस भूमि से भागना पड़ा। He has to hide in a desert. उन्हें एक उजाड़ स्थान में छिपना पड़ा। For 40 years, 40 साल तक God begins to build him again परमेश्वर उन्हें फिर बनाने लगे। in the holy place. पवित्र स्थान में God builds Moses again परमेश्वर मूसा नबी को बनाने लगे until he is ready to stand in the most holy place. जब तक महापवित्र स्थान में खड़ा होने में वे सक्षम न हो गए। That's what happens in this level of sonship. इस स्तर के पुत्रत्व में यही सब होता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, but this is not the ultimate level that God has for you. मगर यह अंतिम स्तर नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए रखे हुए हैं। Just doing what they are told to do. सिर्फ उतना ही करने पर जितना कहा गया हो। Even when you see things getting destroyed around you, इस समय अगर आप अपने आसपास चीजों को नष्ट होते हुए जब देखते हैं, you don't respond out of love आप प्यार के कारण प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, because you think that that is not your responsibility. क्योंकि आप ये सोचने लगते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we need to move to the next level. हमें अगले स्तर पर आगे बढ़ना है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने यह समय हमें दिया। As we were learning about the holy place, जैसे हम पवित्र स्थान के बारे में सीख रहे थे, we know that your desire is for us to move to the most holy place, हम जानते हैं कि आपकी इच्छा है कि हम महापवित्र स्थान की ओर बढ़ें and that you will bless us when we move to this place. और आप हमें आशीषित करेंगे जब हम वहां जाते हैं। And as your children are looking upon you, जैसे आपके बच्चे आपकी ओर देख रहे हैं, teach us, Holy Spirit, हमें सिखाइए पवित्र आत्मा, so that we may learn ताकि हम सीख पाएं to walk in this most holy place. इस महापवित्र स्थान में चलने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen.